सबसे पहले एक सवाल पूछेंगे, व्हाट टाइप ऑफ ट्रेडर्स डू वी हैव हियर टुडे? सो क्विकली लेट मी नो व्हाट आर यू मोस्ट इंटरेस्टेड इन, या फिर आप किस तरह की ट्रेडिंग करते हो? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कर दो सो दैट आई कैन गिव द आंसर टू हरीश सर आल्सो। बिगिनर्स हो ये मुझे पता चल गया है, लॉट ऑफ पीपल आर बिगिनर्स। एंड व्हाट टाइप ऑफ ट्रेडिंग आर यू इंटरेस्टेड इन? स्कैल्पिंग, इंट्राडे, इंट्राडेज, short term, swing trading, F&O, options, F&O, all right, swing trading, options, intraday, short term, swing trade, F&O. Most of the people are typing the same. ठीक है, of course. I already know that people have experience ranging from months to years. No, sir. Rajesh, sir, the class is only going to be live. Okay, ये live ही रहेगी. And do you guys have a pen and paper ready? क्या आपके पास pen and paper ready है? हम कोई भी चीज repeat नहीं कर पाएंगे. Do you have pen and paper ready? Yes. Ready. Wonderful, wonderful. Yes. Rinku ji, yes, sir. Don't worry, sir. सब्र का फल मीठा होता है. So of course you will get great value. And guys, I would just like to know that all the entire video and audio quality, is it fine? Is it fine? I just want to ensure because there is some difficulty we are that we are able to see. कुछ लोग बोल रहे हैं फाइन 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 सर, सही है सही है सही. ऑलराइट, सो इट माइट बी अ नेटवर्क इशू फ्रॉम सम पीपल्स एंड. All right, so the simple thing, and one more thing you have to mention, guys. What has been your trading issue, your trading challenge so far? आपका वो trading, so that we can actually solve it in the class as well as we can work on it during the program also. ठीक है, हो गया. Yes. क्लियर All में right. I वॉइस. think it's already there. यस आजम, All कैन यू right. हियर वॉइस? Yes, sir. Yes, yes, yes. All right, guys. Harish sir is there. Let's have a warm welcome for him. Jaldi se type welcome for Harish sir. Let's welcome him onto the stage with great enthusiasm. Jaldi se. Everyone type welcome. Harish sir, welcome to the class. And a lot of people are eager to talk to you, to see you, to learn from you. थैंक यू गाइस फॉर योर पेशेंस. देयर इज सम टेक्निकल इशू, माय माइक ऑन नहीं हो पा रहा था मेरा, बट इट इज फाइन नाउ. थैंक यू आजम जी. सबको नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड केम चो. कैसे हैं सब लोग? हाउ आर यू ऑल? आई होप आपने सबके पोल ले लिए होंगे आजम जी, व्हिच काइंड ऑफ ट्रेडर वी हैव Yes, टुडे. sir. Yes, yes, yes. Definitely, I'm ready to provide the results, sir. First of all, people are like having a range of experience, starting from months. Few people have 3 months, 5 months experience, and ranging up to 5 years, 10 years, 15 years of experience. So there are multiple traders, and most of them are interested in F&O and intraday and scalping and short term. Then there are some people, sir. You can say 20 to 30% are swing traders. There is hardly anyone who is looking for long term. And regarding the additional details, like they are stuck with the one few problems that I was able to ask. That is entry, exit, and stock selection being the major. राइट, थैंक यू. इज माय ऑडियो इज क्लियर आजम जी? Yes, sir, perfect and clear, loud and clear. सो गाइज, दिस क्लास इज नॉट बिन ऑर्डिनरी क्लास. मैं पहले बता दे रहा हूँ. एक ट्रेडर को सक्सेसफुल होने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या होती है? व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू बिकम द सक्सेसफुल? सिंपल क्वेश्चन है. And you should be interactive mindset is the nice answer. Discipline, yes. I'm not able to find my answer. Yes, that is the most important. Is आपके पास पैसा है, you have the passion, you have the funds and many things, but
द पेशेंस मेक द ट्रेडर सक्सेसफुल। एक ट्रेडर का सबसे बड़ा जो काम होता है वो पेशेंस डेवलप नहीं कर पाता है। सो टुडेज क्लास इज नॉट अबाउट लुकिंग फॉर द रनिंग बिहाइंड द स्ट्रेटेजीज, इट मेकिंग द डिसिप्लिन अ सक्सेसफुल अ पेशेंस ट्रेडर। सो हम लोग बात करेंगे बेस से लेके एडवांस तक, बड़े प्लेयर की साइकोलॉजी से बड़े प्लेयर को कैसे ट्रैक किया जाता है, आपको एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस में कैसे हेल्प हो सकती है उन चीज़ों का, छोटे से स्टॉप लॉसेस पे आप बड़े टारगेट कैसे काम करोगे। जैसे जैसे क्लास आगे जाएगा वैसे वैसे ही एडवांस लेवल में चला जाएगा। बट अंडरस्टैंडिंग द बेस एंड उसको सीखने के लिए जो पेशेंस चाहिए, अगर आप में वो है तो ये क्लास आप लोगों के लिए परफेक्ट है। एवरीबडी इज विथ मी? ठीक है। सो सिट बैक रिलैक्स, क्लास काफी बड़ा होगा। इट मे बी टेक अ 2.5 आवर टू टीच यू, क्योंकि 20 साल में जो हम लोगों ने सीखा है, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू डिलीवर इन 1.5 आवर। सो इट कैन टेक अ लिटिल बिट टाइम, लेकिन एक प्रॉमिस करके जाता हूँ कि आज जो आप सीखोगे इससे आप लाइफ टाइम तक पैसे कमाओगे। यस, जो आज अगर पेशेंसली आप सीख पाए, इस चीज को समझ पाए, फोकस रहे क्लास में, आपका कंसंट्रेशन रहा, तो इससे आप लाइफ टाइम तक पैसे कमा पाओगे। कैन वी मूव हेड? आगे बढ़े? चलो लेट्स मूव ऑन। कैन आई शेयर माय स्क्रीन आजम जी? Yes, sir, definitely. Guys, I've been taking ट्रेडिंग फ्रॉम लास्ट 2020 2006। 2006 से मैं मार्केट में था, ऑलमोस्ट आज 20 साल कंप्लीट हो गए मुझे यहाँ पे। एंड बहुत सारे ट्रेडर्स को हम लोगों ने, आई बिन ट्रेड मोर दैन 10,000 ऑलमोस्ट ट्रेडर्स। एंड जब मैं उनसे बात करता हूँ तो बहुत उनका कॉमन कॉमन से इश्यूज होते हैं, छोटे छोटे इश्यूज होते हैं और बहुत कॉमन से इश्यूज होते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग द क्लास आई जस्ट वांट टू नो फ्रॉम योर साइड कि आपके क्या कॉमन इश्यूज है, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स यू आर राइट नाउ फेसिंग इन द मार्केट। आप क्या किस तरह के प्रॉब्लम फिलहाल फेस कर रहे हो? इज द चैट इज ओके आजम जी? एंट्री पॉइंट पे प्रॉब्लम आ रहा है, लॉसेस का प्रॉब्लम हो रहा है, एंड रॉन्ग एंट्री, स्टॉप सिलेक्शन प्रोसेस, शुरुआत कहाँ से करें, दैट इज द ग्रेट प्रॉब्लम। स्टॉक सिलेक्शंस की जगह प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, अंडरस्टैंड। एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉसेस, फाइन। तो 90% प्रॉब्लम के सॉल्यूशन आप शायद आपको आज मिल जाएंगे, ठीक है। वट एवर यू आर राइटिंग, दिस आर द वेरी कॉमन प्रॉब्लम इन द इंडस्ट्रीज। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स है और इनके सॉल्यूशन बहुत ईजी होते हैं, बस हम लोग को दिखता नहीं है कि सॉल्यूशंस कहाँ पे, वी आर नॉट एबल टू फाइंड द प्रॉब्लम फॉर दैट पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो आई विल गिव यू द फ्रेमवर्क, एक एक तरह का मैं आपको एक सिस्टम दे दूंगा दैट यू कैन फाइंड इजीली योर, जितने भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है वो आप इजीली उसमें फाइंड कर सकते हो। चलो लेट्स मूव ऑन। सो बिफोर मूविंग अहेड, आई बिन 20 साल हो गए मुझे ट्रेडिंग करते हुए, एंड बहुत सारे ट्रेडर्स को हम लोगों ने ट्रेन किया है, उनके 10x ग्रोथ के लिए हेल्प की है। ट्रेडिंग इज माय पैशन। तो ट्रेडिंग से जो मेरा घर चलता है वो ट्रेडिंग से चलता है, ब्रोकिंग से चलता है। एंड टू ट्रेन द ट्रेडर इज नॉर्मली माई पैशन। सो मैं ट्रेडर्स को ट्रेन करने के लिए मैं पैशनेट होता हूँ। And I've been committed 1000% for the traders who want to learn and want to become the professional trader like us. लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर का जर्नी काफी लंबा था, दैट इज शुरुआत से मैं भी आपकी तरह इस तरह के कुछ सेमिनार वेबिनार अटेंड करके धीरे धीरे कुछ कुछ कहीं कहीं का सीख के देन आई बिल्ट माई सिस्टम। सो अगर आप कोई सिस्टम को फॉलो कर रहे हो या किसी एक स्ट्रैटेजी को आप फॉलो कर रहे हो, दैट इज द सिस्टमैटिक ट्रेडर। तो ये जो जर्नी मैं आपको लेके चल रहा हूँ यहाँ से, इट इज नॉट ओनली टू बिकम द ट्रेडर। सिर्फ ट्रेडर बनने का जर्नी नहीं है, ये जर्नी है हाउ यू कैन बिकम द सिस्टमैटिक ट्रेडर फ्रॉम हियर। क्योंकि एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए सिस्टम में रहना जरूरी है, और सिस्टम को कैसे बनाया जाता है उसके लिए ट्रेडिंग सीखना जरूरी है। ओके, सो नॉर्मली आई जस्ट वांट टू नो कि आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल होंगे, बहुत सारे आपके ड्रीम्स होंगे, एंड व्हाट आई नो वांट, आई जस्ट वांट टू नो कि व्हाट इज द इमेज ऑफ अ ट्रेडर इन योर माइंड। व्हाट इज द इमेज ऑफ अ ट्रेडर इन योर माइंड? ट्रेडर होता क्या है? हु इज कॉल्ड एज अ ट्रेडर? आप लोग सब ट्रेडिंग करते हैं, कोई स्विंग करता है, कोई इंट्राडे करता है, कोई ऑप्शन में ट्रेडिंग्स करता है। व्हाट इज द इमेज ऑफ अ ट्रेडर इन योर माइंड? जस्ट वन वर्ड आंसर, आई जस्ट वांट टू नो, जस्ट वन वर्ड आंसर, व्हाट इज द इमेज ऑफ अ ट्रेडर इन योर माइंड? क्या होता है ट्रेडर? माय वॉइस इज ओके?
Gambling, a nice, interesting. Losers, learners. Okay. Disciplined person, a millionaire. ठीक है. Okay. Self-employed. सब लोग ट्रेडिंग करते हैं. Everybody is a trader here. ठीक है. सो नॉर्मली आपने बड़े बड़े नाम सुने होंगे, दैट इज उनके बड़े बड़े वर्डिंग्स आपने देखा होंगे कि ट्रेडर कैपिटल को बहुत इफिशिएंटली यूज करता है, ट्रेडर अपने कैप्चर अपॉर्चुनिटीज वेरी फास्टर एंड ही ऑलवेज कंट्रोल द रिस्क एंड ही बिल्ड अ सस्टेनेबल रिटर्न पोटेंशियल्स, अपने कैपिटल पे अच्छे रिटर्न बनाने की कोशिश करता है. तो ये 20 साल की जर्नी अगर मैं आपको 2 मिनट में समझा दूं कि 20 साल में होता क्या है ट्रेडर, व्हाट इज अ ट्रेडर, मेनली अंडरस्टैंड करो कि व्हाट इज द ट्रेडर एक्चुअली इज. द ट्रेडर एक्चुअली इज हु कैन ट्रेड विद द लिमिटेड कैपिटल इन अ लिमिटेड टाइम विद द लो रिस्क फॉर द हाई रिटर्न. ट्रेडर वो होता है जो कम से कम समय में, कम से कम पैसे में, कम से कम रिस्क में बड़ा प्रॉफिट बना के दिखा सके. उसको हमारे कम्युनिटी में ट्रेडर्स बोला जाता है. इसमें से कोई एक 4 पिलर में से कोई एक पिलर भी मिसिंग है तो आप ट्रेडिंग नहीं, जो आपने आंसर लिखे शायद उसमें से आप कुछ चेक कर रहे हो. कितने लोगों को समझ में आया? बल्ब ऑन मूवमेंट फॉर यू गाइस. ट्रेडर वो नहीं है. बाइंग एंड सेलिंग इट्स नॉट द गेम ऑफ ट्रेडिंग. तो दिन भर बाइक सेलिंग करने का गेम नहीं है ट्रेडिंग. ट्रेडिंग मतलब समझो, पहले ट्रेडर अगर आपको बनना है तो हाउ योर थॉट प्रोसेस शुड बी. आपका प्रोसेस कैसे होना चाहिए? आपके पास करोड़ों रुपए नहीं है, आपके पास लिमिटेड पैसा है और लिमिटेड पैसे को कम समय में अच्छे रिटर्न्स लाने हैं. ये ट्रेडर का मेन काम है. ठीक है. सो इफ यू वांट टू बिकम द ट्रेडर, इफ यू वांट टू बिकम द सक्सेसफुल ट्रेडर, यू हैव टू बिकम इट. आप बन सकते हो अगर आप कोई सिस्टमैटिक ट्रेडिंग करो. नहीं तो जिंदगी भर वही करना है, सट्टेबाजी करनी है, अपने लॉसेस फियर फोमो में ट्रेड करना है, बार बार जाके लॉसेस करके आने मार्केट में. सो अगर सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो पहले माइंड में ये चीज, चारों चीजें डाल दो. देन वी आर गोइंग टू मूविंग अहेड. आगे बढ़ते हैं. सक्सेसफुल ट्रेडर का सिस्टम क्या होता है? व्हाट इज द ट्रेडर? अगर सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो किस तरह के सिस्टम में काम करेगा? तो अगर आपको सिस्टमैटिक ट्रेडर बनना है मार्केट में और इसको आप करियर बनाना चाहते हो, इससे आपके कुछ सपने पूरे करना चाहते हो, आपके फैमिली का हेल्प करना चाहते हो, तो पहले समझ लो मार्केट में अगर आपको सिस्टमैटिक ट्रेडर बनना है तो दैट इज द 5R. लिख लीजिए 5R. फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड द सेंटिमेंट एंड द सिनेरियो ऑफ द मार्केट. कि मार्केट में हवा कैसी चल रही है, हाउ द मार्केट इज मूविंग, ऊपर जाने की डायरेक्शन में है, नीचे जाने की मार्केट डायरेक्शन में है. और इसको आप इजीली समझ सकते हैं. मैं सिखाऊंगा आपको कि मार्केट में सिनेरियो और सेंटिमेंट किस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं. देन अगर सेंटिमेंट समझ में आया तो फिर मुझे मार्केट में किस डायरेक्शन में डिसीजन लेना है. कि मुझे लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो फिर मैं कौन से डायरेक्शन में डिसीजन लूंगा, विच डायरेक्शन आई नीड टू फाइंड. अगर मुझे डायरेक्शन समझ में आया तो मैं किस स्टॉक को सिलेक्ट करूंगा, ऑन विच स्टॉक्स और विच इंडेक्स आई मेक टू मनी, कि मैं कौन से स्टॉक पे पैसे लगाऊंगा. अगर स्टॉक समझ में आया है तो उसका रिस्क मैनेजमेंट मैं कैसे करूंगा और उसके लिए मेरे पास राइट स्ट्रेटेजी है या नहीं. दैट इज व्हाट, दैट इज द सिस्टम. और इस सिस्टम को आप फॉलो करोगे तो ये आपको गलती करने नहीं देगा. गलती करने नहीं देगा तो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा. Once your probability of winning increase automatically, you reach and enhance your confidence in trading. तो पहला कदम अगर गलत हो गया तो उसके आगे के सारे कदम क्या होते चले जाएंगे? गलत होते चले जाएंगे. सो फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मार्केट का बेस क्या है. हम लोग मार्केट के बेस को भूल जाते हैं और एडवांस के चक्कर में नई नई स्ट्रैटेजीज के ऊपर रोज जंपिंग करते रहते हैं. तो हमारा बेस जिंदगी में कभी बन ही नहीं पाता. हम किसी एक सिस्टम को लाइफ में फॉलो ही नहीं कर पाते. गिव मी थम्स अप इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस एंड इट इज बीन टचिंग योर हार्ट एज वेल. ये नॉर्मल स्टोरी है. मैं भी इसी तरीके प्रोसेस में निकला हूं. मेरे को पता है ट्रेडर का पेन कहाँ पे होता है, उसको कितनी तकलीफ होती है, किसको वो शेयर नहीं कर सकता, अपनी फैमिली से बात नहीं कर सकता. तो आई बीन फीलिंग दैट सेम पेन फॉर लास्ट 15 ईयर. 15 साल इस पेन में जिया हूं मैं. और उसके बाद के जो 5 साल निकले हैं दैट बीन द चेरी ऑन द केक. वहां से हम लोग को जो नया शुरुआत मिला है दैट विल बी द बेटर. सो आगे जैसे जैसे चलेंगे हम लोग वैसे वैसे मैं मेरे बारे में बताऊंगा. टुडे आई हैव बीन मैनेजिंग अप्रोक्सीमेटली 25 करोड़ ऑफ फंड. 25 करोड़ रुपए मैं मैनेज करता हूँ एंड आई कैटरिंग 250 एंड मोर HNI क्लाइंट्स. HNI क्लाइंट्स जिनका
जो पोर्टफोलियो होता है वो 1 करोड़ से ऊपर हम लोग HNI क्लाइंट्स बोलते हैं, ऐसे में 250 क्लाइंट्स को ट्रेड करता हूँ, उनको ट्रेन करता हूँ, ठीक है। सो जैसे जैसे आप मेरे साथ आगे बढ़ोगे, मेरे बारे में मैं बताते रहूंगा एंड वी कैन मूव फॉरवर्ड। हाउ कैन आई हेल्प यू, आपको किस तरीके से मदद होगा, और डोंट वरी, फिट रिलैक्स, सिट रिलैक्स, यहाँ पे आपसे कोई पैसे नहीं लिए जाएंगे भाई, मैं आपकी मदद करने के लिए बैठा हूँ, ये ध्यान में रखिए, ठीक है। मूविंग अहेड, एक सिंपल चीज समझ लीजिए, ट्रेडर्स का जो जर्नी होता है, इट इज द लोनली प्रोसेस, इट इज लाइक द 2 माउंटेन्स, और यहाँ पे एक ट्रेडर खड़ा है, द वन ट्रेडर इज स्टैंडिंग एट दिस लेवल, and every day it has to pass from this mountain to this mountain. As a trader, अगर आप कोई गलती करते हो, एनी मिस्टेक यू मेक इन योर ट्रेडिंग सिस्टम्स, एंट्री लेने में, स्टॉप लॉस लगाने में, स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस में, सो देयर इज नो एक्सक्यूज, यहाँ पे गलती की कोई माफी नहीं है, ठीक है। गलती करोगे, मार पड़ेगी, जिसकी आवाज नहीं होगी वो सीधी दिखेगी आपके बैंक अकाउंट पे। So there is no excuse for the any mistake you do in the in your trading. चाहे आप इंट्राडे करो, पोजीशन करो या स्विंग ट्रेडिंग, तो यहाँ पे गलती की कोई माफी नहीं है। There is no mercy for your mistake and you directly fall into the reverse और the खाई में गिर जाओगे। दूसरा, ये जर्नी हमको रोज तय करनी, वी हैव टू मूविंग फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड एवरी डे। और यहाँ पे हम लोग अगर चिल्लाएंगे कि मेरी हेल्प कर दो, मेरी मदद कर दो, हैव बीन शाउटिंग कि मेरी हेल्प कर दो, सो बिलीव मी, nobody, no superhero come from the sky to help you out of this situation. कोई भी सुपर हीरो, कोई भी आयरन मैन, शक्तिमान, सुपरमैन आपकी मदद करने नहीं आ सकता। यहाँ पे आपको खुद का ही सुपर हीरो खुद बनना पड़ेगा, खुद के लिए और आपकी फैमिली के लिए। Nobody can help you. ये आप सुपरमैन, स्पाइडरमैन कैसे बन पाओगे? हाउ कैन यू बिकम योर सुपर हीरो फॉर योर सेल्फ एंड योर फैमिली? बाय गैदरिंग द नॉलेज एंड एनहांस योर वैल्यूज इन ट्रेडिंग्स। जिस तरह से आप प्रैक्टिस करोगे, अपना नॉलेज बढ़ाओगे, अपनी वैल्यू को बढ़ाओगे, अपनी समझ को बढ़ाओगे मार्केट में, तभी आप आगे तरक्की कर पाओगे। दूसरों के कंधे पे बंदूक रख के कभी स्टॉक मार्केट में कोई बड़ा आदमी नहीं बना। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो यहाँ पे कोई मदद नहीं मिलेगी, जो करना है खुद ही करना है और खुद के भरोसे ही करना है। आप चाहोगे कि ये मेरी मदद करेगा, वो मेरी मदद करेगा, नहीं भाई, वो 1-2 बार हो जाएगा, लेकिन अगले बार फिर आप कहीं नहीं जाओगे। सो मेक इट इन माइंड कि खुद की मदद खुद को ही करनी है, खुद को ही सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। इज इट क्लियर? सो मेरे कम्युनिटी में वी आर नॉट एंटरटेन एनी नेगेटिव मार्केट माइंडेड पीपल्स, ठीक है। द पीपल हु वांट टू लर्न अबाउट द स्टॉक मार्केट, दे आर वेलकमिंग टू माय कम्युनिटी। जिनकी सोच छोटी है, जिनके पैरों में मोच है, हम उनको एंटरटेन भी नहीं करते। They are not entertaining the people who have the very, जिनका rigid है mindset. If you have a learner's mindset, अगर आप सीखने की तरह आ रहे हो, you are welcoming to our trading community, ठीक है। तो your mind should be broader to learn and understand the things, क्योंकि जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगा हम लोग setups and candlesticks के ऊपर जाएंगे। Clear? So how many people want to become the systematic trader in the market? सिर्फ ट्रेडर नहीं बनना है, हमको एक सिस्टम ट्रेडर बनना है। टाइप मी इन द चैट बॉक्स who want to be with me for next 2.5 hours, the complete entire journey to learn how they can become the systematic trader. I mean, a lot of wise people are with me who can deliver the 2.5 hours with me. So I promise you कि जो 2 से 2.5 घंटा आप मुझे दोगे, ये लाइफ के आपके मेमोरेबल लर्निंग प्रोसेस के 2.5 घंटे होंगे, बिकॉज आई एम कमिटेड 1000% to give you the proper understanding and the knowledge about the market. आगे बढ़े, चलो let's move on. Thank you for understanding once again from the bottom of my heart, because I like the learners who have the open minded people who want to learn, because subject बहुत बड़ा है, it's like a deep blue sea, बहुत गहराई है इसके अंदर, it's been very deep to understand. अगर आप इसमें एक बार समझ जाओगे तो ये आपको लाइफ टाइम तक पैसा देगा, ठीक है। कैंडलस्टिक्स के बारे में कितने लोग जानते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट द कैंडलस्टिक पैटर्न्स? हाउ मेनी नो अबाउट द कैंडलस्टिक पैटर्न्स? यस, बहुत सारे लोग जानते हैं। कितने लोग नहीं जानते, who don't know about anything about the candlestick pattern?
नो, आई वांट टू नो कि सर आई डोंट नो अबाउट एनीथिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। सो एक 5 मिनट में हम लोग क्विकली एक सिंपल में समझा दूंगा आपको कैंडलस्टिक पैटर्न होता क्या है। जैसे क्लास आगे बढ़ेगा वो एडवांस लेवल में चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि सबको साथ में लेके चलेंगे तो दूर तक चलेंगे। आगे बढ़ना है तो फास्ट चलना होगा, लेकिन दूर तक चलना है तो भाई सबके साथ चलना होगा। सो वी हैव बीन हियर एज अ कलेक्टिव ट्रेडर्स फैमिली एंड सबके साथ चलने की कोशिश करेंगे। चलो लेट्स मूव ऑन। कैंडलस्टिक इज द सिंपल, जो आप देखते हो ग्रीन और ब्लू कलर का कैंडल आपके स्क्रीन पे। कैंडलस्टिक क्या होता है? एक रेड या ग्रीन कलर का कैंडल होता है। बट हाउ दिस कैंडलस्टिक क्रिएट, ये बनता कैसे है? इट इज मेड अप ऑफ द 4 एलिमेंट, दैट इज ओपन, मार्केट 9:15 को ओपन होगा, मार्केट 3:30 को क्लोज होगा। तो एक प्राइस ओपन का हो गया, लेट्स सपोज 100, एक प्राइस मार्केट में क्लोज का हो गया, लेट्स सपोज मार्केट आज 110 पे क्लोज हो गया। ओपन एंड क्लोज, ये 2 एलिमेंट हो गए। उसके बाद हो सकता है मार्केट ऊपर की तरफ गया हो बीच में, इन बिटवीन, या नीचे की तरफ गया। सो ओपन, हाई, लो एंड क्लोज, इन चारों चीजों को जब हम लोग मिलाते हैं तो कैंडल स्टिक्स में कन्वर्ट होता है, ठीक है। दैट इज हाउ द कैंडल स्टिक मेड। कैंडल स्टिक क्या है? कैंडल स्टिक इज द डेटा। व्हाट इज कैंडल स्टिक? ये है डेटा। किस चीज का डेटा है? दिस इज द डेटा ऑफ अ प्राइस। तो आप क्या सीखने वाले हो? आप प्राइस को रीड करना सीखने वाले हो। धीरे Today you are बजाओ। going to understand how to मैं read the कहाँ price. क्लास ले रहे हैं? If you read the price, you understand the momentum of the price. अगर आपने प्राइस को रीड करना सीख लिया तो आपको इससे ये पता चल जाएगा कि मार्केट कौन से डायरेक्शन में मूव हो सकता है। दैट इज द स्टोरी बिहाइंड द कैंडलस्टिक पैटर्न्स। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ नॉर्मली हमको इस तरह की कैंडल्स दिखती है, ओपन, हाई, लो एंड क्लोज, ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। सो यहाँ पे दिख रहा है हमको ओपन एंड क्लोज, हाई पॉइंट एंड लो पॉइंट। नाउ लेट्स सपोज मार्केट ओपन एट 100। मार्केट कितने बजे ओपन होता है रोज? एट व्हाट टाइम द मार्केट ओपन? 9:15, 9:15 मार्केट ओपन होता है ना रोज। दिस इज ओपन एट 9:15, यस। एंड लेट्स सपोज द मार्केट मूव टू द लोअर साइड, मार्केट नीचे की तरफ चला गया 95 पे। तो ये किसने नीचे किया? हाउ द मार्केट मूव टू द 100 and 195? Because some selling pressure is happening here. Sellers आए मार्केट में, right? After moving to the 95, market directly jump to the 100 and 105, वहां पे चला गया। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ से जो बायर आया, this buyer moved the market to the higher level. So from this point to this point, what you can understand? क्या समझ में आया? कि मार्केट में डिमांड बहुत बढ़ गई। डिमांड बहुत बढ़ गई तो प्राइस बढ़ गया। ये सुनो, मार्केट में यहाँ से डिमांड बहुत बढ़ गई इसलिए क्या बढ़ गया? प्राइस बढ़ गया, अग्रेसिव बाइंग हो गया। और एवरी पीपल इज इंटरेस्टेड टू बाय, दे आर विलिंग टू बाय इवन एट अ हायर प्राइस। यानी जो ट्रेडर्स है वो खुशी से हायर प्राइस पे बाय कर रहे हैं, 110, 115, 120 एंड मार्केट मूव टू द 125। तो इससे हमको क्या पता चल रहा है? हमको सेंटीमेंट पता चल रहा है मार्केट का, कि मार्केट में ट्रेडर्स का सेंटीमेंट कैसा है। सपोज द मार्केट क्लोज एट 120, तो यहाँ पे क्या पता चला वापस? व्हाट यू कैन अंडरस्टैंड हियर अगेन, कि मार्केट 125 तक गया था लेकिन कुछ सेलिंग प्रेशर वापस आया इसलिए नीचे आ गया मार्केट। फ्रॉम 125 टू मार्केट क्रैश टू द 120। अब मुझे कैंडल बनानी है तो मैं क्या करूंगा? ओपनिंग प्राइस प्लस क्लोजिंग प्राइस के बीच में एक ऐसा बॉक्स बना दूंगा। दिस बिकम द बॉक्स फॉर मी। और ये क्या बताता है? ये है सेंटीमेंट आपका, जिसको हम लोग बोलते हैं रियल बॉडी ऑफ द मार्केट। ये हो गई सेंटीमेंट। दिस इज द सेंटीमेंट एंड इट लुक इन ग्रीन। और सेंटीमेंट कैसा हो गया? ग्रीन कैंडल का मतलब क्या है? कि मार्केट में लोग बाइंग करने के लिए ज्यादा फोकस्ड है, इंटरेस्टेड है। उनका जो मेन हायर प्राइस पे भी दे आर अग्री टू बाय इवन एट अ हायर प्राइसेस। प्राइसेस बढ़ रही है फिर भी मार्केट में बायस बाय साइड की तरफ जाता है। अपोजिटली अगर हम लोग बात करें तो व्हाट हैपन टू द सेलिंग साइड, कि मार्केट ओपन एट 120, हो सकता है मार्केट थोड़ा ऊपर जाए। द मार्केट इज मूविंग लाइक दिस, यहाँ पे बायर्स आए मार्केट में एंड द मार्केट मूव टू द अपर साइड, बट सडनली देयर इज अ सेलिंग प्रेशर एंड मार्केट क्रैश डाउन टू द लोअर। तो जो ट्रेड 125 पे चल रहा था वो सीधा क्रैश हो गया
190 के पास। तो ये किसके वजह से हुआ? देयर इज अ सम सेलिंग प्रेशर, मार्केट में सप्लाई ज्यादा हो गया, बायर्स आर नॉट इंटरेस्टेड टू बाय इन द मार्केट। तो सेंटीमेंट में क्या समझ में आया? बायर इंटरेस्टेड है क्या इसमें? बायर्स आर नॉट इंटरेस्टेड, वो नहीं चाहते, कोई भी इंटरेस्टेड है नहीं बाइंग करने के लिए। इसलिए क्या हो रहा है? मार्केट में बायर्स खत्म है, सेलर ज्यादा हो रहा है, तो प्राइस क्या हो रहा है? प्राइस ड्रॉप होते जा रहा है। हो सकता है प्राइस वापस एक रिवर्सल करके क्लोज यहाँ पे कर दे। मार्केट 3:30 बजे क्लोज होते होते 100 रुपए पे क्लोज हो जाए। ओपन कहाँ पे हुआ था? ओपन हुआ था 120 पे, लेकिन क्लोज कहाँ पे हुआ सेम डे? इट क्लोज एट 100 रुपीज। सो हमको क्या पता चला? मार्केट में जो चीज सुबह 120 की बिक रही थी, उसी चीज का भाव शाम को 110 रुपए हो गया। एंड दैट लुक इन रेड इन कलर। तो सेंटीमेंट समझ में आ रहा है? गिव मी थम्स अप क्विकली, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड द सेंटीमेंट ऑफ द मार्केट. What is the red candle, what is the green candle, what is the sentiment, and what is the supply and demand of the market? Easy? Easy है? एडवांस लेवल पे जाए अभी फिर. Let's go on understand the advanced level of the market. एडवांस लेवल का मतलब क्या है? आपका सोच एडवांस होना चाहिए, दैट इज द एडवांस थिंग्स. सो हमको नॉर्मली ऐसी मार्केट दिखती है, ग्रीन एंड रेड कैंडल, दैट इज अ वेरी सिंपली वी कैन अंडरस्टैंड. अब अगर मैं चार्ट पे आ जाऊं, ये निफ्टी का चार्ट लगा देता हूं मैं आपके लिए. दिस इज द निफ्टी डेली चार्ट ऑन माय स्क्रीन. ठीक है, निफ्टी का डेली चार्ट मैंने अपने स्क्रीन पे लगा दिया. दिस इज अ रिसेंट आज का कैंडल है. नाउ आर यू फाइंडिंग द कैंडल्स? दे आर विद एवरी कैंडल इज अ डिफरेंट शेप. हर कैंडल का जो शेप है वो पहले वाले से अलग है या एक जैसे है सब कैंडल का शेप? अब किसी में यहाँ पे लंबी विक्स दिख रही है, किसी में बहुत छोटी सी विक्स है, किसी की बॉडी बहुत बड़ी है, किसी की बॉडी बहुत छोटी है. आर यू फाइंडिंग एनी कैंडल विच इज सिमिलर टू द प्रीवियस कैंडल? क्या ऐसा कोई कैंडल हमको दिख रहा है कि जो पहले वाले कैंडल से सिमिलर टू सिमिलर है? नो, एवरी कैंडल इज डिफरेंट. नाउ व्हाई दिस हैपेंस? एलिमेंट तो 4 ही है ना कैंडल के, ओपन, हाई, लो एंड क्लोज. ये 4 एलिमेंट से तो कैंडल बना है ना. देयर आर 4 एलिमेंट दैट क्रिएट द कैंडल्स. नाउ कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि हम लोग रोज मार्केट में स्टडी करके जाते हैं कि आज मैं ऐसा कर लूंगा, आज मैं वैसा कर लूंगा, आज तो मार्केट नीचे ही जाएगा, आज तो मार्केट ऊपर ही जाएगा, उसके हिसाब से मैं मार्केट में रोज स्टडी करता हूं और रोज एग्जाम देने जाता हूं. लेकिन जब भी मैं मार्केट की एग्जाम देता हूं, मार्केट सिलेबस ही चेंज कर देता है. कितने लोगों के साथ हुआ है? गिव मी थम्स अप. सर हम लोग रोज स्टडी करते हैं लेकिन रोज नया पेपर आता है, रोज नया सब्जेक्ट आता है. व्हाई दिस हैपन? बिकॉज प्राइस चेंज एवरी डे. है कि नहीं? समझ लो आज मार्केट 100 रुपए पे ओपन हुआ. इज इट पॉसिबल कि कल भी मार्केट 100 रुपए पे ही ओपन होगा? आज मार्केट 100 रुपए पे क्लोज हो गया, 110 पे क्लोज हो गया, 110 द मार्केट क्लोज. इज इट पॉसिबल दैट टुमारो आल्सो मार्केट क्लोज एट 110? नो, इट विल स्टार्ट फ्रॉम द क्लोजिंग प्राइस. जहां से मार्केट क्लोज हुआ या वहां से ओपन होगा. And 1000 out of the one time that is possible that market again open at 100. Yes or no? So market रोज चेंज हो रहा है. मार्केट इज लाइक अ पजल. ठीक है, रोज आपको खोजना है कहां से शुरुआत करनी है. दैट इज द पजल. एंड यू, आई प्रॉमिस यू कि आज के बाद आप उसको इजीली रीड कर पाओगे कि कल मार्केट में क्या होने वाला है. व्हाट विल हैपन टुमारो इन द मार्केट, कि कल मार्केट कैसा काम करेगा अगर आज सीख के गए आप तो. इफ यू अंडरस्टैंड इट फोकसली, अगर आपने इसको फोकसली समझ में सीख लिया कि कैंडल की भाषा क्या होती है, मार्केट क्या बोलता है, मार्केट के सेंटीमेंट्स कैसे होते हैं, तो इसको रीड करना आपने सीख लिया तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि कल मार्केट क्या करने वाला है. ठीक है, सो इट बीइंग वेरी डीपर इनसाइट. नॉर्मली आई जस्ट बिन गिवन यू वन एग्जांपल. एक नहीं, मैं आपको 10 12 15 एग्जांपल सिखा दूंगा. इफ यू लर्न सीरियसली द स्टोरी बिहाइंड द कैंडल्स, अगर आप इसके पीछे का कहानी पता करना सीख गए, आप इसके पीछे के सेंटीमेंट को समझना सीख गए, तो 1 कैंडल कैन गिव यू पर ट्रेड 1 लाख रुपीज. 1 लाख रुपए का ट्रेड बनता है. एंड माय मेनी ट्रेडर्स आर मूविंग अबाउट दिस. बहुत सारे ट्रेडर 1 लाख के ऊपर चले गए हैं पर ट्रेड. नाउ हाउ इज पॉसिबल? मैं पहले बता रहा हूं, वी आर नॉट टॉकिंग एनी बकवास.
सीधी बात करेंगे एंड नेक्स्ट हाफ एन आवर आपको ये समझ में आने लग जाएगा, ठीक है? देयर इज नो बकवास, सीधी बात। 1 लाख रुपीज का कैंडल कैसे होता है और हम लोग कैसे इसके ऊपर 1 लाख रुपीज का प्रॉफिट ले सकते हैं, ये आपको आधे घंटे में सीखने मिल जाएगा। आप खुद भी उसको रीड करके उसका एडवांटेज ले सकते हो। कैन वी मूव फॉरवर्ड? टाइप रेडी इन द चैट बॉक्स। आई कैन मूव to give you the proper and the broader understanding, the story behind the candles, the psychology behind the candles, the thinking about the big players. आगे बढ़े, चलो। बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं, चलो देखते हैं। गधा है, घोड़ा है। आई कैन टेल यू गाइज, गधा घोड़ा बन के निकल जाएगा और हम वहीं पे खड़े रह आ जाएंगे। जाओ, ऊपर आ जाओ। ठीक है? ऐसे सो बैठा के द ट्रेडिंग इज अ गेम ऑफ एक्टिव प्लेयर्स। आपका एज कितना है, नहीं इट हो डजंट गए। मैटर। आपके जेब में पैसा अपनी कितना क्लास है, कर इट रहे डजंट क्लास। मैटर। मैटर हाउ you have तुम been आ जाओ, eager to तुम बैठा learn के ऐसे में। and how active you are फिर participate in the जाएंगे trading. लक्ष्मी। Because if you taking the actions very delay in the trading, अगर जितना समय आप लाइफ में एक्शन लेने में बिताओगे, आपका सक्सेस उतने डिले से आपके लाइफ में आएगा। उसको लिख के रखना, जितना डिले आप आपके लाइफ में एक्शन लेने में करोगे, आपका सक्सेस उतनी ही डिले से आपके लाइफ में आएगा। सो कीप इन माइंड, यू हैव टू टेक एक्शंस इन योर लाइफ। ये मेरे लिए नहीं भाई। चलो लेट्स मूव ऑन। सो आज के बाद आप नॉर्मल रिटेलर की तरह कैंडल्स नहीं देखोगे। यू डोंट लुक द कैंडल्स लाइक अ रिटेल प्लेयर। पहले समझो बड़े प्लेयर कैसे काम करते हैं एंड हाउ यू कैन थिंक लाइक अ बिग प्लेयर। सबसे पहले लॉजिकल थिंकिंग डेवलप करना शुरू करो मार्केट में। दैट इज बिहाइंड ईच एंड एवरी ट्रेड देयर इज अ लॉजिक। कभी सोचा है आपने कि आपने कोई ट्रेड किया, व्हाट इज द लॉजिक एंड द रीजन बिहाइंड द ट्रेड? मैंने ये ट्रेड क्यों किया? कितने लोग करते हैं लॉजिकल थिंकिंग ट्रेड करने के बाद या ट्रेड करने के पहले? व्हाई यू डिड ट्रेड दिस? दिन में तो 50-100 ट्रेड कर देते, सोचने का समय कहाँ है सर? है ना? दिन में हम लोग 100 ट्रेड कर देते एक कैंडल पे बैठ के, बाइंग सेलिंग करते रहते। फर्स्ट यू अंडरस्टैंड द लॉजिक एंड द रीजन कि अगर मैं ट्रेड कर रहा हूं तो इसके पीछे का लॉजिक और रीजन क्या है, मैं क्यों ट्रेड कर रहा हूं भाई, मुझे उसका आंसर तो मिलना चाहिए। तो लेट्स अंडरस्टैंड द लॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ द बिग प्लेयर थिंकिंग। बड़े प्लेयर कैसे सोचते हैं? द बिग प्लेयर इफ दे वांट टू इन्वेस्ट, लेट्स सपोज 10,000 करोड़, 10,000 करोड़ नॉर्मली एफआईएस के लिए बहुत नॉर्मल चीज है, एंड दे वांट टू इन्वेस्ट 10,000 करोड़। अब मुझे बताओ कि कोई बड़े प्लेयर को 10,000 करोड़ इन्वेस्ट करने हैं, क्या ये मार्केट में विदाउट स्टडी, विदाउट एनी डेटा, विदाउट एनी न्यूज, विदाउट अंडरस्टैंडिंग द सेंटिमेंट, विदाउट अंडरस्टैंडिंग द फ्यूचर टेम्परामेंट, या विदाउट अंडरस्टैंडिंग द सिनारियो, इंफॉर्मेशंस या रिसर्च के बगैर आएगा? क्या लगता है आपको? 10,000 करोड़ मन में आया, लगा दिया? बड़ा प्लेयर कभी भी बिना किसी इंफॉर्मेशन के, बिना रिसर्च किए, बिना न्यूज के मार्केट में नहीं आएगा। ठीक है? ही हैज ऑल द इंफॉर्मेशन बिफोर इन्वेस्टिंग एनी सिंगल पेनी इन द मार्केट। तो यू हैव टू आल्सो अंडरस्टैंड कि भाई मार्केट में आने के पहले क्या मैं इंफॉर्मेशनली आई बीन प्रिपेयर्ड। दूसरा चीज, मार्केट में कभी भी बड़ा प्लेयर एक्सपेंसिव रेट्स पे बाय करने नहीं आएगा या चीपेस्ट रेट पे सेल करने नहीं आएगा। इसका मतलब है कि मार्केट जब बहुत बड़ी तेजी में है तब यहाँ पे बड़ा प्लेयर बाय नहीं करेगा, या मार्केट एक्सटेंसिव लो पॉइंट पे है तो यहाँ पे वो सेल नहीं करेगा। दे आर टेकिंग एग्जैक्टली अपोजिट डिसीजंस। एग्जैक्टली अपोजिट यानी जब भी मार्केट एक्सपेंसिव है वो यहाँ पे सेलर बनेगा, और जहां पे मार्केट सारा पैनिक में है, एट दिस प्लेयर ही इज बिकम द बायर। इट मीन ही इज बाय एट अट्रैक्टिव वैल्यूज एंड सेल एट द एक्सपेंसिव वैल्यूज। तो उसका मतलब है कि मार्केट में बॉटम पे ही बायर बनेगा और टॉप पे ही सेलर बनेगा। ध्यान में रहेगा ये रूल? तुम सब, बड़ा प्लेयर कभी भी टॉप पे बायर नहीं बनने आएगा, कभी भी बॉटम पे सेलर नहीं बनेगा। वो हमेशा बॉटम पे सेलर बनेगा और टॉप पे सेलिंग करने ही आएगा। तीसरा चीज, जब भी मार्केट में आएगा क्या वो अननेसेसरी वो इनकैलकुलेट रिस्क लेके ट्रेड करने आएगा? ही इज ऑलवेज
कैलकुलेट द रिस्क बिफोर एंटरिंग इनटू द मार्केट, कि भाई 10,000 करोड़ लग रहे हैं इसमें कि 1,000 करोड़ का मैं लॉस ले सकता हूँ। हमारे जैसा लॉस वाली पोजीशन को लेके खड़े नहीं रहेगा वो लाइफ टाइम तक, कि चलो देखते हैं कब बढ़ेगा तब बेचेंगे। इट इज नॉट लाइक दैट। सो यू हैव टू बी अंडरस्टैंड, whenever you plant any trade, you have to be very calculative in your risk. That is called as a system trading. Then जब भी बड़ा प्लेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने आएगा तो कैंडल ऐसी छोटी छोटी बनेगी, और यू कैन फाइंड एक्सक्लूसिव कैंडल्स। एक्सक्लूसिव यानी बड़ी कैंडल्स बनेगी, क्योंकि बड़ा बाइंग होगा तो मार्केट में वो कैंडल भी बड़ी बनेगी। विल बी द बिग कैंडल्स, यू कैन फाइंड इजीली ऑन द चार्ट्स। तो आपको समझ में आ गया कि बड़ा प्लेयर आ रहा है, बस हमको लोकेशन समझ में आनी चाहिए। ठीक है, ये 3 चीजें हैं दैट यू कैन फाइंड अ बिग प्लेयर वेरी इजीली। अभी आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा इन चीजों को समझना। नाउ इफ आई बीन शोइंग यू द कैंडल लाइक दिस, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड विद दिस कैंडल। सपोज यहाँ पे ये नहीं है, इट इज नॉट देयर, ये नहीं है। व्हाट यू कैन अंडरस्टैंड विद दिस कैंडल? सिंपल, ये ग्रीन कैंडल के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। आपको सिर्फ बताना है कि क्या आपको समझ में आ रहा है। व्हाट यू कैन अंडरस्टैंड विद दिस कैंडल, द ग्रीन कैंडल ओनली, ओनली द ग्रीन कैंडल। लिखा है मैंने, बाइंग प्रेशर है, सब है। चलो, वेरी बुलिश कैंडल्स है, वेरी नाइस। एंड इट हैज द मोरुबुजो कैंडल, आपको बहुत सारे लोगों को नाम भी पता है इसके। अग्रेसिव बायर्स, दैट इंटरेस्टिंग, स्ट्रॉन्ग बाइंग है। नाउ वी आर ट्राइंग टू लर्न द साइकोलॉजी जो आपको अभी तक नहीं पता। ठीक है, क्या भी लर्न करें द हिडन पार्ट ऑफ दिस कैंडल। सबको सिंपल दिख रहा है कि यहाँ पे ओपनिंग प्राइस है, दिस इज द ओपनिंग प्राइस एंड दिस इज क्लोजिंग प्राइस। तो सपोज ये 100 रुपए पे ओपन हो गया और 120 पे क्लोज हो गया, तो हमको क्या दिख रहा है कि मार्केट में बायर आए और प्राइस को ऊपर लेके गए, यही दिख रहा है। बाइंग प्रेशर ज्यादा है। चलो, व्हाट यू हैव नॉट सीन, लेट्स लर्न इन द क्लास। मजा आएगा कि आपको क्या नहीं दिख रहा है उसको समझने के लिए। सो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड नाउ द डार्कर साइकोलॉजी ऑफ अ कैंडलस्टिक पैटर्न। क्या समझने वाले हैं? डार्क साइकोलॉजी क्या होता है कैंडलस्टिक पैटर्न के पीछे का। लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं। कितने लोगों ने ऑब्जर्व किया कि मैंने ये यहाँ पे विक्स मिटा दिया? नॉट एबल टू मेक द विक्स। अगर विक्स होता तो इसको कैसे पढ़ते थे? ये लो पॉइंट बनता था और ये क्या बनता था? हमारा हाई पॉइंट। यस, लेट्स सपोज लो पॉइंट मेक 95 and high point is 125, राइट? इस तरीके से पढ़ते थे इसको आप, कि मार्केट ओपन हुआ 100 पे, फिर 95 तक लो गया, फिर 125 गया, फिर 120 हो गया, राइट? Now let's look at the candle with a bigger perspective and try to learn the sentiment behind the patterns. अब इसके पीछे का साइकोलॉजी समझो। शायद ये फेसबुक या यूट्यूब पे, इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है। शायद आपको समझ आने में कामयाब हो जाओ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। प्लीज बी फोकस्ड एंड आई रिक्वेस्ट यू टू, बार बार मैं रिपीट नहीं करूंगा तो आपका फोकस यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन रखिए, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी द डार्कर साइकोलॉजी ऑफ अ पैटर्न। चलो, मार्केट कितने बजे ओपन होगा? 9:15 को। एवरीबडी विथ मी, टाइप मी इन द चैट बॉक्स, बिकॉज ये बहुत इनर डेप्थ में जाने वाला है। अभी 9:15 को ओपन होगा। लेट्स सपोज कि मार्केट ओपन होता है 100 पे, और वो मूव द मार्केट। मार्केट को मूव कौन करता है? इज द रिटेलर्स मूव द मार्केट और द बिग प्लेयर्स मूव द मार्केट? सबको पता है कि रिटेलर उसको हिला नहीं सकता, ओनली द बिग प्लेयर्स मूव द मार्केट। ठीक है, चलो अब इसको वापस रीड करो। मार्केट ओपन एट 9:15 and some big player move the market from 100 to 95. Give me thumbs up. You are reading with a new style. कि मार्केट 100 रुपए पे ओपन हुआ और बड़े प्लेयर ने इसको 95 तक लेके गया। तो इसको हमको इससे क्या पता चल रहा है कि व्हेन द मार्केट ओपन, बिग प्लेयर्स आर रेडी फॉर सेल।
what they are ready for? कि जैसे ही मार्केट खुला, बड़े प्लेयर किस चीज के लिए रेडी थे? वो मार्केट में सेल करने के लिए रेडी थे. यस, गुड. कि मार्केट खुला 9 बजे 9:15 को, वैसे ही बड़े प्लेयर आए और मार्केट को ड्रॉप डाउन कर दिया 95 तक. बट इस केस में तो लो पॉइंट था नहीं, है ना? इस केस में तो मैंने लो पॉइंट मिटा दिया था. यहाँ पे कोई लो पॉइंट नहीं था. मतलब क्या हुआ? व्हाट दे वांट कि जैसे ही मार्केट खुलेगा, इफ दे आर नॉट रेडी फॉर सेल, व्हाट दे आर रेडी फॉर? कि बड़ा प्लेयर सेल करने के लिए तो रेडी नहीं था, फिर वो किस चीज के लिए रेडी था? कि जब मार्केट खुलेगा, जैसे ही मार्केट खुलेगा, वी आर रेडी टू बाय इन द मार्केट. बाइंग 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 करेंगे. बड़ा प्लेयर अगर बाइंग कर रहा है तो क्या प्राइजेस में स्पाइक्स आएंगे? विल द डिमांड इंक्रीजेस? डिमांड बढ़ेगा तो क्या होगा? डिमांड बढ़ेगा तो भाई प्राइस भी बढ़ेगा ना. तो हमको क्या समझ में आया पहले मिनट से? कि मार्केट में बड़ा प्लेयर सेलिंग करने के लिए रेडी नहीं था. वो वेट कर रहा था कि कब मार्केट खुलेगा और कब मैं मार्केट में बाइंग करूंगा. बड़ा प्लेयर बाइंग करेगा तो इंपल्सिव मूव आएगा. ये बड़ा प्लेयर बड़ी कैंडल बनाता है. तो क्या हो रहा है? द फ्लो इज मूविंग ऑन द हायर साइड. क्या हो रहा है? हमारा फ्लो ऊपर की तरफ जा रहा है. दैट इज द प्राइस इज मूविंग 100, 102, 103, 105. यहाँ पे कौन आ रहा है? सारे बायर्स 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 मार्केट में आ रहे हैं. कहां तक पहुंच गया प्राइस? 125 तक पहुंच गया. तो सारे सारे हमको क्या पता चल रहा है? सेंटीमेंट कि एवरीबडी इज गोइंग फॉर द बाय इन द मार्केट. सबका सेंटीमेंट बाइंग साइड की तरफ है. अब थोड़ा सोच के बताना, ये 125 तक पहुंचने के बाद क्या हो रहा है मार्केट में? कि मार्केट 125 पे पहुंचा, लेकिन वापस क्लोजिंग 120 पे आके हो गया. व्हाट इज हैपनिंग हियर? यहाँ पे क्या हो रहा है? हो सकता है कि जिन लोगों ने यहाँ पे बाइंग किया, दे आर बाइंग एट हियर 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 हियर. जो भी बाइंग हो रहा है, जो भी बायर थे, दे आर बिकमिंग द सेलर एट द टॉप. इसका मतलब क्या हुआ? कि जो बॉटम में जो लोग बायर थे, जैसे ही मार्केट का टॉप आया तो बायर बिकम द सेलर एट टॉप. मार्केट का टॉप बन गया ना. 100 की चीज 125 हो गई तो क्या हो गया? मार्केट में टॉप बन गया. तो जो मार्केट में बायर थे, वही मार्केट में क्या बन गए? दे आर बिकमिंग द सेलर इन द मार्केट. जिसकी वजह से क्या हो रहा है? मार्केट में सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो रहा है. सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो रहा है तो प्राइस नीचे ड्रॉप कर रहा है. Give me thumbs up if you are enjoying the learnings like this now. Give me thumbs up guys. Thank you. इसका मतलब क्या है? बायर टॉप लेवल पे जाके क्या बन रहा है? सेलर बन रहा है. सेलिंग प्रेशर से प्राइस टूट रहा है. नीचे के प्राइस पे बायर बन रहा था, कोई सेलर नहीं था. बट इसको थोड़ा सा और ध्यान से देखो. अभी अगर मैं ये 125 पॉइंट का हटा दूं, if I've been making this candle without this wick, what you can understand? यहाँ पे कोई विक नहीं है, समझ लो. यहाँ पे कोई विक नहीं है. Now how can you read? कैसे रीड करोगे? जो मार्केट में बायर आया बॉटम लेवल पे, द बायर हु बाय एट बॉटम, ही डोंट वांट टू सेल इन द मार्केट. इसका मतलब क्या हुआ? कि जिसने बॉटम पे बाइंग किया, उसको अपना स्टॉक बेचना ही नहीं है. देयर इज नो सेलर्स, नो बायर आर इंटरेस्टेड टू सेल देयर स्टॉक. किसी को माल बेचना ही नहीं है भाई. सबको माल रखना है, घर पे लेके जाना है. Now, in this kind of situation, if the sentiment, nobody want to become the seller in the market, अगर मैं आपको बोलूं कि मार्केट में सप्लाई ही खत्म हो गया और मार्केट में सिर्फ डिमांड बचा है, तो आने वाले दिनों में इस प्राइस के साथ क्या हो सकता है? देयर इज नो सप्लाई, देयर इज ओनली डिमांड. व्हाट विल हैपन टू द प्राइस? और मैं आपको बोलूं कि भाई आप इसमें डिसीजन लो कि आप ऐसी कंडीशन में मार्केट में बायर बनना पसंद करोगे या सेलर बनना पसंद करोगे. सो द एक्टिव प्लेयर्स कैन टाइप बी इन द चैट बॉक्स और द एस इन द चैट बॉक्स. बी और एस इन द चैट बॉक्स. जो एक्टिव होगा, जिसको ट्रेडिंग सीखना है, वो भाई अपना टाइप कर देगा. उसको क्या समझ में आया?
नाउ व्हाट दिस एक्सपेरिमेंट सेज, अब ये एक्सपेरिमेंट ने क्या किया देखो, व्हेन यू अंडरस्टैंड द सेंटिमेंट, आपको मार्केट का सेंटिमेंट समझ में आया, आपको उसका सिनेरियो समझ में आया, यू आर एबल टू टेक डिसीजंस, आपने सेंटिमेंट को समझा और आप डिसीजन पे पहुंचे। व्हेन यू अंडरस्टैंड द सेंटिमेंट एंड सिनेरियो, यू आर एबल टू टेक डिसीजंस एंड योर डिसीजन शुड बी इन द राइट डायरेक्शन ऑफ द मार्केट। 99% trader fail because they are not able to take right decisions in the right direction of the market. This is the first step to take the trade. हमारा पहला कदम गलत हो गया तो भाई इसके बाद आने वाले सारे कदम गलत ही आएंगे। अगर आंसर ही मैंने गलत लिख गया तो उसका रिजल्ट तो जीरो ही आएगा ना। अंडरस्टैंड, दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू बिकम द ट्रेडर, टू अंडरस्टैंड द सेंटिमेंट एंड द सिनेरियो ऑफ द मार्केट। पहला आंसर ही गलत दे दूंगा तो भाई मेरा रिजल्ट गलत ही आएगा। आई एम नॉट एबल टू चेंज माय रिजल्ट बिकॉज आई एम टेकिंग द रॉन्ग डिसीजंस। मार्केट बोल रहा है मैं ऊपर जाने वाला हूं, तुम कर रहे हो मैं सेल करूंगा। अंडरस्टैंड दिस, trading is not a game of only buying and selling. Trading is a game of probability. Trading is a game of everything. सिर्फ बाइंग और सेलिंग से आप करोड़पति नहीं बनोगे भाई, मार्केट को समझो और फिर प्लान करो। ये भी थम्स अप, थोड़ा सा बल्ब ऑन मूवमेंट हुआ है, दिमाग की बत्ती जली है। So we are not here to become the buyers and sellers in the market. We are here to understand the sentiment, scenario, and take a decision to follow some systems in the market. We are not here to become the trader. We are here to become a systematic trader. That is the first step when you understand the sentiment and scenario. अब अगर मैं आपको बोलूं कि ये रेड कैंडल का साइकोलॉजी उससे भी डार्कर है, व्हाट यू कैन अंडरस्टैंड विद दिस रेड कैंडल? ये जो कैंडल है रेड वाला, इसका साइकोलॉजी ग्रीन कैंडल से ज्यादा भयानक है। इट इज मोर डीपर देन द ग्रीन कैंडल। रीड करो फटाफट क्या क्या समझ में आ रहा है। यहाँ पे ओपनिंग हुआ और मार्केट में सेंटीमेंट खराब है, इसलिए मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट इधर क्लोज कर रहा है। मार्केट कितने बजे ओपन होगा? व्हेन द मार्केट ओपन 9:15 को ओपन होगा। क्या समझ में आया कि मार्केट जैसे ही ओपन हुआ, बड़े प्लेयर किस चीज के लिए रेडी थे? वो बाइंग करने के लिए रेडी थे। आर दे आर हियर टू बाय इन द मार्केट? नो, जैसे ही मार्केट ओपन हुआ दे आर ट्राइंग टू पुल द मार्केट डाउन, सेलिंग 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 के लिए रेडी हो गए। ये सर नो। तो मार्केट में बड़ा प्लेयर मार्केट खुलने के बाद डिसीजन लेता है कि वो पहले से ही प्रिपेयर्ड होता है कि कल उसको क्या करना है। जैसे हम लोग जाते हैं ना मार्केट में, चलो खुलने तो दो, देखते हैं 5 मिनट, फिर सोचते हैं करना क्या है। बड़ा प्लेयर ऐसा सोचता है कि ले खुलने तो दो, फिर देखते सोचते हैं क्या करना है। तो ही इज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड वेल इन एडवांस कि उसको कल क्या करना है भाई। तो जैसे ही मार्केट खुला, वो किस चीज के लिए रेडी थे? दे आर रेडी फॉर सेल इन द मार्केट। उनको पता है कि सेलिंग करना है, और सेलिंग करना है इसलिए मार्केट में सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, एंड द प्राइस इज मूविंग लोअर। अब यहाँ पे ध्यान से ऑब्जर्व करो, जस्ट सपोज दिस इज 100, closing is 90 and the lowest price for this bearish candle is 85। अगर यहाँ पे लो पॉइंट होता तो आप कैसे रीड करते थे? इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट सिनेरियो है, अंडरस्टैंड दिस फोकसली, कॉन्सेंट्रेट ओवर हियर। दो बहुत डार्क साइकोलॉजी इसमें। पहली होती है शॉर्ट सेलर्स की, उसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट कवर, और दूसरी होती है वैल्यू इन्वेस्टर्स की। वैल्यू इन्वेस्टर्स, अंडरस्टैंड व्हाट इज द शॉर्ट कवर्स एंड द शॉर्ट सेलर आर। शॉर्ट सेलर का मतलब है कि जो भी सेलर यहाँ पे 100 पे स्टॉक को सेल कर रहा है, इसने सेल किया सेल किया सेल किया और प्राइस 85 पे आ गया, सो व्हाट ही विल डू, ही विल ट्राई टू बाय एट 85, सो ही विल गेट द 15 rupees as a profit। He is selling at the same thing at 100 and he is buying at 85, so he'll get a profit of 15 rupees, that is called short selling। Second is value investor। value investors are the players who can, बहुत बार आपने नाम सुना होगा कि बॉटम फिशिंग्स करते हैं। बॉटम फिशिंग का मतलब कि जो स्टॉक्स के अच्छे स्टॉक्स होते हैं उनके वैल्यूएशन जब कम हो जाते हैं, व्हेन दे आर इन अट्रैक्टिव वैल्यू,
the big player trying to